वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस, शिवांगी, सिद्धार्थ, आंचल। अब इसमें बताओगे क्या कहाँ पर थे अपन? देखो, ग्रीन इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन यहाँ से स्टार्ट करना था क्या? फिफ्थ यूनिट तो कंप्लीटेड है। हाँ बेटा, फिफ्थ यूनिट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अपन तो फोर्थ यूनिट कर रहे थे। यस, फिफ्थ तो तुम्हारे मिड टर्म में आई थी। यस, इन द ग्रीन बिल्डिंग we started fourth unit. In a fourth unit, and on which topic we were? Like, see, sustainable habitat, green building, green materials we already discussed in a very thorough manner. Green selection for sustainable design, green building certification. यहाँ तक हो गया था शायद. Methods for increasing energy efficiency of building. That need to start or sustainable. Yes, Methods for increasing. मेरे ख्याल से ये करना था शायद. ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन तक तो हो गया था. Methods of increasing energy efficiency building. Let me see, अगर हो गया है तो भी बताना. ठीक है, इसमें बेसिक स्लाइड्स में तो यही था. सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन बिल्डिंग कर लिया था अपन ने. मटेरियल्स का भी डिस्कशन थॉरली हो गया था. सर्टिफिकेशन, यस, ये हो चुका है तुम्हारा. ग्रीन बिल्ड सर्टिफिकेशन में लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंट डिजाइन, दैट लीड. IGBC is a Indian Green Building Council, and green rating for integrated habitat assessment, that is GRIH. Now comes green building certification for energy efficiency. So green building incorporate unique construction, and for the certification water and energy efficiency, ये मैं करा चुकी हूँ शायद. नहीं, यहीं पे थे. यस, सर्टिफिकेशन हो गया, यहाँ से था. मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द पार्ट कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है. दैट पर्टिकुलरली वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बट आई थिंक वंस यू लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन. आज तो नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है. अच्छा है, फिर भी मैं थोड़ा ये वॉल्यूम का देखती हूँ. रुको, वॉल्यूम भी 90. वंदना, यू लेफ्ट एंड ज्वाइन. ओके, यू लेफ्ट, रीजॉइन बेटा, आ जाएगा. ठीक है. सो इंडोर एनवायरमेंट क्वालिटी, वाटर इफिशियंसी, better health, material efficiency, better environment, reduce strain on local resources. ये कुछ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस के लिए चाहिए रहते हैं. मेन पॉइंट आता है, व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन बी इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी ऑफ द बिल्डिंग. सो द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ बिल्डिंग जो है वो क्या है, एक तरह से एक्सटेंट है टू विच द एनर्जी कंजम्पशन per square meter of floor area of a building measures up to the established energy consumption benchmark for that particular type of building under defined climate condition. I just suggest you to write down both the points. इसको मैं डिटेल में अभी हम PPTs में भी देखेंगे, बट कई बार बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है क्या मीनिंग. जैसे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स क्या करती है, इट इज डिफाइंड बाय buildings that can be designed to provide sufficient reduction of energy need for heating and cooling independently, and the equipment that will be chosen to heat or cool the building.
So basically energy efficient building का meaning ये है wherever I am needing the heat or the heating, cooling and whatever environment condition there at the minimum energy consumption that can be occupied. That is called the energy efficiency building. And why there is a need or how what are the methods to increase this वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये लिख लो तुम. आई एम गिविंग यू 2 minutes because many a times students को रहता है what is energy efficiency building and all. Completed, ma'am. Yes. Okay. Now, the main topic was what are the method by which we can increase it. So the methods are seal your ductwork, check your bucket for leaks, insulate your water heater and pipes, install a programmable thermostat, wash your laundry in a cold water, swap out light bulbs, replace appliances before they die, clean and replace filter. इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसकी स्लाइड में अपन अब इसको देखते हैं. वेट. ठीक है. What is the main purpose of energy efficient building is to produce buildings with a minimum environment impact.
मतलब एनवायरमेंटल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमारी बिल्डिंग्स पे ना पड़े, एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन मिनिमाइजिंग ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट. फाइन. अराउंड द वर्ल्ड प्राइवेट एंड बिजनेस डिविजन्स जितनी भी हैं वो 2589 MTO मेगा टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इतनी एनर्जी को दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ फाइनल एनर्जी. What is the objective of energy efficient building is modulate the conditions such that they are always within or as close as possible to comfort zone. Basically energy efficient building का main reason ये है कि जो भी natural climate environmental disasters होते हैं उन conditions में भी हम हमारे comfortable zone में उन buildings में कैसे रह सकते हैं. That is a one objective. Increasing the demand for building service and the comfort levels, together with the rise in the time span inside buildings, assure that the upward trend, what it shows the upward trend in energy demand will continue in the future. Okay. So it is in a primary objective is the energy policy at regional, national and international level. ठीक है. एनर्जी यूटिलाइजेशन साइकिल की अगर हम बात करें, कमर्शियल में वाटर हीटिंग में 15% ही होता है, हीटिंग में 25%, मेनली कूलिंग में. कमर्शियल में एसी वगैरह जो है इसमें ही ज्यादा इसका यूज होता है एनर्जी का. रेसिडेंशियल में हम बात करें सो वाटर हीटिंग जो है दैट इज 45%, हीटिंग इज 20 और कूलिंग का जो पार्ट है वो 35% ही आता है. ठीक है. ये यहाँ तक मैं शायद करा चुकी थी, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं. यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर मेकिंग बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट. एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने के लिए देखो एक तो सोलार सिस्टम लगा सकते हैं एंड डुअल फ्लश टॉयलेट इस तरह से हम कर सकते हैं. हाई इफिशिएंसी वाटर हीटिंग है. लाइट जो है एनर्जी एफिशिएंट की लगाना, वाइन टर्बाइन लगा सकते हैं. ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम इज देयर. ठीक है. इन्हीं सबका नाम मैंने वहां लिखा है, मैं भी लिखवाऊंगी. तो मैथोलॉजी जो है दैट इज डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं. मैथोलॉजी क्या है? अपनी डेटा माइनिंग टेक्निक्स. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड द पैटर्न फ्रॉम ह्यूज डेटा एंड इट्स कॉल्ड नॉलेज डिस्कवर प्रोसेस. हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं मैथोलॉजी में दैट इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, एंड इन दैट whatever useful information is there and the patterns from the huge data, and it's the knowledge discover process. It helps the project teams discover useful patterns. Data mining technique क्या करती है? उन उन चीजों को डिस्कवर करती है that is used or that is useful pattern to improve energy efficiency of building design during design phase. And fault detection and diagnosis analysis tools जो है it provides insight into the building system which help reduction in energy consumption, improve building performance at the low cost. ठीक है. ना इसमें जो यूजफुल स्टेप्स है डेटा माइनिंग, ये इसमें सिर्फ ये सेकेंड वाला पैरा लिख लो तुम. डेटा माइनिंग टेक्निक हेल्प प्रोजेक्ट टीम discover useful pattern to improve energy efficiency of building design during design phase. ठीक है. write down this. लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन उसमें मेन सेकेंड पॉइंट और थर्ड ही है कि पैरेलल विद डेटा माइनिंग क्या करती है? फॉल्ट डिडक्शन है, डायग्नोसिस करना है, एनर्जी रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, इंप्रूव बिल्डिंग परफॉर्मेंस.
बेसिकली डेटा माइनिंग जो है आईटी में सब्जेक्ट भी है. डेटा माइनिंग कुछ नहीं होता, जो भी ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है, इतने सॉफ्टवेयर और आईटी डेवलप हो चुकी है, उन डेटा में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकालना इज अ डेटा माइनिंग. लिख लिया मेरे ख्याल से, एक ही लाइन लिखनी थी बेटा. ओके, अब स्टेप्स जो यूज होती है, दैट इज रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, एनर्जी मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस. ठीक है, सो दैट इज द स्टेप विच इज used. रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, एनर्जी मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस. बेसिकली ये होता है, उसमें हम इसको ले लेते हैं. ठीक है, नाउ एनर्जी सिमुलेशन इन बिल्डिंग डिजाइन. तीन स्टेप है. पहले तो डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी मुझे जहां पर भी चाहिए, जैसे अगर एनर्जी इफिशिएंसी में भी चाहिए बिल्डिंग में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी बिल्डिंग या मल्टीप्लेक्स या जो भी मॉल मुझे बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग. सेकेंड, हाउ आई कैन do energy modeling in that, and finally the analysis of the data. डेटा को किस तरह से मुझे एनालिटिकली करना, एनालिसिस करना है, मुझे नहीं, सॉफ्टवेयर में कैसे एनालाइज कराना है कि हमें सिर्फ उसमें से वो नॉलेजेबल चीज मिल जाए, एक्सट्रैक्शन पॉइंट, कि हाँ दिस इज अ की पॉइंट टू बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, ये अपन 4 बार रिपीट कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं करूंगी ये सपोज. बट डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज जो है, कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, outlier and thread analysis, that is going to be there. और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने से 10 to 12% टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमारा सेव होता है. इसमें एक और चीज है जो मैं चाहूंगी तुम लोग लिखो, वे टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी में ये चीजें हैं, ये पॉइंट तुम लिख लो. seal your ductwork, check the faucets for leaks, insulate your water heater and pipes, wash your laundry in a cool. और ये इसके अलावा तुम उसमें ये भी लिख सकते हो, रिप्लेस अप्लायंस बिफोर द टाइम. मतलब ऐसे अप्लायंसेस कई होते हैं जो ईयर बाय ईयर उनमें क्वालिटी में डिग्रेडेशन आता है, और अगर हम तब भी यूज कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है और वो इतनी क्वालिटी की चीज हमें देते नहीं. ठीक है, और इसमें तुम सोलार प्लेट सिस्टम भी लिख सकते हो, सोलार एंड वाइंड एनर्जी. ये पॉइंट्स भी लिखो. मींस क्वेश्चन कुड कम, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग एंड व्हाट आर द वे टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी इन दैट दीज पॉइंट्स. इन पॉइंट्स की डिटेलिंग तो तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, बट हाँ उसमें मुझे क्या पॉइंट्स आने चाहिए उसके लिए मैं तुम्हें बताऊँ. ठीक है, सोलार और वाइंड एनर्जी और लिख देना. देन वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. जल्दी लिख लो बेटा.
Okay. Now next topic is sustainable cities and sustainable transport. ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक डेफिनेशन जो सस्टेनेबल सिटी की है, इट एनहांसेस द इकोनॉमी, सोशल, कल्चर एंड एनवायरमेंटल well-being of current and future generations. And sustainable cities जो रहती है, that is sometimes known as ecological or eco cities, settlements designed to have as little impact on the environmental as possible. And this can be, मतलब sustainable cities means that is enhancing social, economic or cultural environment. ठीक है, and sustainable cities sometimes is known as ecological or eco cities, that is settlements designed to have as little impact on this. ठीक है, along with this, what is the characteristic of sustainable cities? Sustainable cities means whatever resources that city is using, it is renewable. So empowerment of women and encouraging their participation in political, social and economical life, and adoption of urban policy that took into the account women's needs and initiatives. तो वन तो ये हो गया, मतलब इन अ सस्टेनेबल सिटी वुमेन एम्पावरमेंट इज वन पॉइंट. सेकेंड, an efficient healthcare system that can also address here a mechanism in the form of policy initiatives for industrial dispersal for satellite township, where the better employment opportunities can be created, and development of an efficient urban private sector, both for formal and non-formal, that reduce the poverty by generating jobs and helping in economic. ठीक है, as far as sustainable transports are concerned, so sustainable transport concept जो है, it promotes a balance between transportation economy and social benefits and need to protect the environment. In further, we can say the Center for Sustainable Transportation has defined a sustainable transportation system as one that it allows individuals and societies to meet their assessed needs, safety, and in the manner consistent with human and ecosystem health and with equity within and between generations. Affordable operators रहते हैं, it offers choice of transport, supports a vibrant economy, it limits the emissions and waste within the planet's ability. बेसिकली यही है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट भी यही है कि वो हीट कम निकाले and minimize the consumption of non-renewable resources, consumption of renewable resources to the sustainable yield level, and reuses and recycles its components and minimize the use of land. Yes, बहुत theoretical तो रहता है, लेकिन ठीक है. Conventional and non-conventional energy is later. First, we discuss sustainable cities. So what basically mean by the development? Development is a process of becoming and it is a process of becoming and a potential state of being. Sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need. In urban planning, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रहता है, अर्बन प्लानिंग में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या शो करता है, रीओरिएंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल गुड्स. सो व्हाट इज सस्टेनेबल सिटी, जहाँ ये तो अपन मैं बता चुकी हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ whom adequate meaningful deployment is available. मीन्स पॉपुलेशन इतनी ज्यादा भी नहीं हो कि हम उसके लिए रिसोर्सेज मैनेज ना कर पाए. एडिक्वेट गवर्नेंस सेटअप that meets the needs of the population and ensures civic responsibilities. Planned house colonies with adequate infrastructure like park है, drainage system है, local medical establishment है, schools है, that used to be there.
बेसिक सिविक एमिनिटीज होती है, वो सब, मतलब ये सारी चीजें कंसीडर जहाँ होती है, दैट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल इफेक्टिव। जैसे अभी इंडिया में भी है कि इंडिया को भी सस्टेनेबल सिटी बनाने की कोशिश है। ये जो सीवरेज का काम चल रहा है इन होल सोल भीलवाड़ा, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, इफेक्टिव environmental infrastructure to address the issues of untreated sewage and waste polluting rivers, lakes and coastal zones। ये वाला जो पॉइंट है ये अभी अपने यहाँ चल। सोशल एनवायरमेंट इकोनॉमिक की हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल सिटी में combination of social and environment is bearable, social and economy is equitable, and environment and economy is viable। कैरेक्टरिस्टिक मैंने तुम्हें वहां बता दी थी। अब अगर हम बात करें मोर सस्टेनेबल या लेस सस्टेनेबल सिटीज की, तो मोर सस्टेनेबल में कंपैक्ट फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी देयर, whereas in a less sustainable low density spread out resident development is there, along with this segregation of land users, homes, jobs, shopping separated into uniform tract is there, mixed land use, homes, jobs, shopping in the close proximity is there, employment based primarily on education and skill, movement on foot and by bicycle, wind and solar energy, thermal and neutral energy। ये कुछ पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज की हम बात करें, दैट इज वोवेंग फ्रैंक जर्मनी, दैट इज अ न्यू नेबरहुड ऑफ सिटीज, 500 inhabitants and 600 jobs and 5 kilometers to the south of the town center। In this, it was built as sustainable model district on the city site of former French military base। एक तो जर्मनी में बताया है, सी दिस इज अ पैटर्न, see their street and everything। Second is Calgary is a city of province of, नाम लिख लो एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल सिटी के, डिटेल्स तुम्हें नेट पे मिल जाएगी। फर्स्ट तो ये है जर्मनी की ये सिटी, नाम लिख लो फर्स्ट। इसमें देखो कलेक्टर रोड, लोकल स्ट्रीट, पेडिस्ट्रियन और बाइक पार्क, कौन कौन से, ये पूरा वो किया। और ये कब डिजाइन हुई है, 2001। लिख लिया ना, वेबर्न फ्रैंक जर्मनी। सेकेंड इज, लिख लो चलो 2 मिनट। अपार्ट फ्रॉम नीटनेस एंड क्लीननेस देर आर सो मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स कि कलेक्टर रोड कौन सी होगी, बाइक्स और इसके लिए क्या होगा, क्लीननेस के लिए क्या है, ऐसे। सेकेंड इज कालगेरी, इट इज अ सिटी ऑफ प्रोविनेंस ऑफ अल्बर्ट, कनाडा। ये कनाडा में है। ठीक है, नाम लिख लो, बाकी डिटेल तो तुम्हें मिल जाएगी। गिव एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल सिटी एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल सिटी, इस तरह से क्वेश्चन आए तो इन दैट तो तुम्हें कालगेरी और ये सब का नाम लेना ही पड़ेगा ना। एक तो जर्मनी में और ये सेकंड है कनाडा में, दैट इज कालगेरी। ये पूरा चार्ट के थ्रू है कि कहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, कहाँ दूसरी कैटेगरी वाली चीजें, ओलंपिक विंटर गेम्स कहाँ खेलेंगे, एवरीथिंग इज वेल प्लान। दिस इज Calgary। सी हाउ clean is the water that is not outside of the city, in between city।
Calgary Mendes measured street network, freeway system, and all. Urban land use planning and this. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सस्टेनेबल सिटी से हम कल पढ़ेंगे. प्लीज नोट डाउन द टॉपिक. समटाइम मेरे को तो वैसे याद रहता है, बट देर आर सो मेनी पैरेलल वर्क इज गोइंग. बैक तुम्हारे सीनियर्स के बैक एग्जाम में ड्यूटीज भी चल रही है, कहीं दूसरे फॉर्म भराए जाने हैं, तो उसमें कई बार होता है. तो हम कल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सस्टेनेबल सिटी से करेंगे. नाउ गिव योर अटेंडेंस. सी यू टुमारो. राइट. हाँ चल. Present. शिवांगी, सिद्धार्थ, वंदना. वंदना तुम शिवांगी प्रेजेंट मैम. ओके. और वंदना तुम वीडी की क्लास में नहीं थी? चलो कोई बात नहीं. ओके. सिद्धार्थ, आर यू देयर? ओके.